Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. This is day 2. I welcome you to your second day of this English language course. आज हम इसमें जो हमारा first topic है उसमें हम कुछ discussion करेंगे and that topic is basically related to the tenses. मैं gradually move कर सकती हूँ और मैं अपनी pace को increase भी कर सकती हूँ, which depends on you. If you think that if you think that you want me to move fast, मैं अपनी speed increase करूँ, that will 100% depend on your requirement. आज हमने tenses discuss करने हैं. Let's see कि हमने इसमें क्या देखना है. आपको English language अगर learn करनी है और अगर English language को improve करना है, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम सिंपल. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. चाहे आपने अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं, यू हैव टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, you have to focus on your listening skills, or you want to improve your speaking skills, you have to start from the simple and you have to start small. आपने डिफिकल्ट चीज से अगर स्टार्ट किया, कोई डिफिकल्ट कंटेंट पिक कर लिया, either it is your reading skills or it is your listening skills, or you start writing complex sentences, or you start speaking at a level that is difficult for you, trust me, आप English language से दूर भाग जाएंगे. You will not be able to improve the language. The first thing that you have to keep in your mind is start from simple and start from small. Baby steps लेके हमने English language को improve करना है and you will be able to improve. इसी तरह जब हम tenses को start करेंगे, अब हमारे English language में 12 tenses हैं. 12 tenses इस तरह बनते हैं कि उसमें past, present और future आ जाता है. Major 4 tenses हैं. So 3 categories हर एक की बनती हैं तो वो 12 बन जाते हैं. Major आपके 4 tenses. हमने स्टार्ट करना है सिंपल टेंस से. इस टेंस का नाम ही सिंपल टेंस है. इसका एक और नाम है जिसको सिंपल इनडेफिनेट टेंस कहते हैं. मैं आपको इनडेफिनेट का मतलब बता दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि इसको हम इनडेफिनेट क्यों कहते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल टेंस सो दैट यू हैव द बेसिक आइडिया कि आपने सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करनी है. जो सिंपल टेंस है वो हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. वेदर यू आर स्पीकिंग और यू आर राइटिंग, the content that is in simple tense is easily read and easily understandable. Of course, there are complex structures as well, and they are used in reading, writing, listening, and speaking. The most commonly used or most easily understood है that is simple past tense, simple present tense, and simple future tense. मैं आपको इसका जो structure है वो अभी दे दूंगी. सेंटेंस का जो मेन एक ऑर्डर होता है, एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, मैंने ये आपको डे 1 पे इसका आइडिया दिया था. दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जो मैंने आपकी असाइनमेंट्स आज चेक की हैं, उन असाइनमेंट्स में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट. ऑलवेज स्टार्ट योर सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट. The reason why you have to start your sentence with the subject is because ये आपके sentence को strong बनाता है, ये आपके sentence को meaningful बनाता है और उसमें sentence active sentence रहता है. So you have to start your sentence with a subject. For example, you say there is a girl sitting on the chair. There is no need to start the sentence with there is or there are, here is or here are. ये जो there और here है, ये words use होते हैं but they do not make a good start. Sentence का start आप subject से करें. What you can do is you can say a girl is sitting on the chair, or the boys are sitting in the classroom. There are 5 boys in the classroom. The sentence is correct, लेकिन there are जो structure है that is not acceptable. Sentence को subject से start करें. He, she, it, Ali, Murray, Sidra, Amna, Qaid-e-Azam. The sentence should start with a proper subject, okay, to make it more meaningful, to make it more strong, and to gain the attention of your audience. अगर आपने अपनी audience की attention को grab करना है,
रीडर को कनेक्टेड रखना है. सो मेक योर सेंटेंस स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. आपका सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और ऑर्डर जो है सेंटेंस का उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है. आगे जब हम पॉजिटिव सेंटेंस जो कि आपका सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस होता है, और नेगेटिव सेंटेंस और जो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, जब वो करेंगे तो उसका ऑर्डर भी आप एग्जांपल्स के साथ देख लें. Indefinite tense is the other name of simple tense. आप simple tense को indefinite tense भी कहते हैं. आगे मैंने indefinite tense की जो definition है वो आपके लिए रखी है. Yes, Mr. Fida, you can submit your assignment after the session or you can submit it tomorrow as well. Don't worry about that. Just keep working on your assignments. ये जो हमारा अभी लाइव सेशन है, इन लाइव सेशंस को हम इनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं. आपको आवाज नहीं आ रही? Kindly let me know that if you're having any voice volume problem. If you have a volume problem, please leave the meeting and join again. Please check your microphones, all of you. Check microphone. Okay. So indefinite tense जो है उसको हम simple tense भी कहते हैं. और thank you so much, Mr. Ahmed and Miss Simon. So Mr. Fida, you can submit your assignment according to your convenience. हमारी ये live sessions होते हैं और live sessions की हम जो recording है वो आपकी convenience के लिए Facebook group पे upload कर देते हैं. So according to your convenience, you can watch the recording and then you can submit it in the WhatsApp group. So indefinite का मतलब होता है when the time is not clear, when the time is not mentioned. मैंने आपको यहाँ पे tense का भी meaning explain करना है. वो मैं अभी आपके further आपको explain करूँगी. Okay. Simple tense को indefinite tense कहते हैं. मैं अब आपको इसका meaning explain कर दूँगी. Look at the perfect present tense. Present tense में आपका subject के साथ first form of verb आती है. Past tense में आपकी subject के साथ second form of verb आती है. और फ्यूचर टेंस में आपका सब्जेक्ट के साथ will प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. ये मैं आपको तीनों टेंसेस डिटेल में करवाऊंगी. अभी ये बताने का पर्पस ये है बिकॉज यू आर डूइंग योर असाइनमेंट्स यूजिंग दीज टेंसेस एंड यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. So what you have to do is that when you are using the past tense, you have to keep in mind that you have to use the second form of verb. मैं आपके लिए एक काम करूंगी कि मैं आपको इस सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में verbs की लिस्ट भेजूंगी. verbs जो होते हैं ना उनकी 3 kinds होती हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb, सेकंड फॉर्म ऑफ verb, थर्ड फॉर्म ऑफ verb. प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb यूज होनी है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ verb यूज होनी है, और फ्यूचर टेंस में will के साथ दोबारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb यूज होनी है. जब मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में और आप प्रेजेंट टेंस किसी असाइनमेंट के लिए यूज करने लगेंगे तो आप उन लिस्ट को खोलेंगे और आप वर्ब्स देख लेंगे कि इन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है. किसी वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी होगी तो आप उस लिस्ट में इजीली सर्च कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू. ये टेंसेस हमने डिटेल में करने हैं. अच्छा जी, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि थ्रू आउट द सेशन हम डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि हमने टेंसेस स्टडी करनी है. जब हम टेंसेस स्टडी करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि आपका सेंटेंस जो है एक सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है. आपके सब्जेक्ट्स जो हैं टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहलाए जाते हैं. अगर आप आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे यूज करेंगे, ये आपके प्रोनाउंस हैं. पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट यूज होती है. व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट, मिस्टर अहमद?
नहीं जी, असाइनमेंट मैंने आपको अभी कोई नहीं दी है। असाइनमेंट मैंने अभी आपको प्रोवाइड करनी है इस सेशन के एंड पे। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको वर्ब्स की लिस्ट जो है वो दूँ। पास्ट टेंस में आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं मिस्टर अहमद, जस्ट डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। इस टॉपिक को पहले प्लीज देख लें। हमारे इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन इज मी, आई, सिंगुलर, वी प्लूरल, आई टॉक, वी टॉक। सो आई एंड वी आपका जो है फर्स्ट पर्सन है, जो बंदा आपके साथ बात कर रहा है। द पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन is the first person, right? Second person who is right in front of me, आप सब अभी मेरे लिए second person है। The person whom I am talking to is the second person. First person जो action कर रहा है, second person जिससे मैं बात कर रही हूँ या जो मेरे सामने है, you singular और plural both होते हैं, ठीक है? For example, you are a girl, all of you are girls. So you जो है वो singular के लिए भी use होता है और plural के लिए भी use होता है। Mr. Fahad, you have to check your microphone. Please check your microphone if you're not able to listen to my voice. और थर्ड पर्सन होता है जो जिसके बारे में बात की जा रही होती है, राइट? सो द थर्ड पर्सन इज नॉट बिटवीन अस, दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट। ही, शी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है और दे जो है वो प्लूरल थर्ड पर्सन होता है। ही, शी एंड इट सिंगुलर and they is third person plural. ये आपके कहलाए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। हमने प्रोनाउंस की बहुत सी टाइप्स करनी है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कॉमनली सब टेंसेस में यूज होगा। आप अपनी असाइनमेंट्स देखें, उसमें आपने कॉमनली आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे यूज किया हुआ है, विच मीन्स कि हमने इनको कॉमनली सब टेंसेस में यूज करना है। इसलिए हम इन पर्सन्स को इतना रिपीट करेंगे इस सेशन में कि आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएंगे। आज ये आपके लिए एक नई चीज है। सो विद टाइम व्हेन वी विल बी कवरिंग ऑल द टेंसेस, व्हेन यू विल बी डूइंग असाइनमेंट्स ऑन डेली बेसिस और ये आप पर्सनल प्रोनाउंस यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और आपको ये याद हो जाएंगे। इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है? इनडेफिनेट का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। कोई इंफॉर्मेशन है, उसका आपको, ये मैं आपको डेफिनेशन डिक्शनरी मीनिंग दे रही हूँ अभी इनडेफिनेट का। इनडेफिनेट का जनरल डिक्शनरी मीनिंग ये है, इफ आई से आई एम इनडेफिनेट अबाउट माय फ्यूचर प्लान, मैं अपने फ्यूचर प्लान के बारे में इनडेफिनेट हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाट आई विल बी डूइंग। जब कोई बात क्लियर नहीं होती, कंफर्म नहीं होती, यू से आई एम इनडेफिनेट अबाउट इट। इनडेफिनेट का ऑपोजिट क्या है? डेफिनेट। So definite means assured, definite means confirm. Indefinite का मतलब है जब कोई बात क्लियर ना हो। अब हम इस टेंस को indefinite tense क्यों कहते हैं? जो वर्ड टेंस है, टेंस का मतलब होता है टाइम। प्लीज रिमेंबर दिस, ये बात याद रखें। जो वर्ड टेंस है उसका क्या मतलब है? आपसे कोई पूछे कि आप टेंसेस पढ़ रहे हैं, आपको वर्ड टेंस का मतलब आता है? टेंस का मतलब होता है टाइम, और हम 3 टाइम्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 3 का मतलब है पास्ट, नंबर 1 पास्ट, नंबर 2 प्रेजेंट एंड नंबर 3 फ्यूचर। हम 3 टाइम्स पढ़ रहे हैं, 3 टेंसेस पढ़ रहे हैं मेजर, जो कि आगे फर्दर टाइप्स ऑफ टेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो आपका सिंपल टेंस है जो आपका सिंपल टेंस है उसको आप इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें टाइम जो है वो मेंशन नहीं किया जाता, टाइम कंफर्म नहीं है। आपके सिंपल इनडेफिनेट टेंस में
टाइम स्पेसिफिक नहीं है, टाइम कंफर्म नहीं है, टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। यू डोंट नो कि एक्शन किस वक्त हो रहा है। मिस्टर फहद, आई हैव नो आइडिया कि आपको जो है आवाज क्यों नहीं आ रही। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो आवाज आ रही है। प्लीज चेक योर वॉल्यूम सेटिंग। सो आई होप कि आपको इंडेफिनेट का मतलब पता चल गया है। इंडेफिनेट जब कोई बात कंफर्म ना हो, इंडेफिनेट टेंस जब टाइम कंफर्म ना हो, व्हेन यू डोंट नो कि एक्शन किस टाइम पे हुआ है। इंडेफिनेट टेंस आपको एक्शन नहीं बताता, किस टाइम पे हुआ है ये नहीं बताता, इसलिए इसको इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस, इसमें आप कौन सा वर्ब यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और आप एस और ई एस लगाते हैं जब वर्ब थर्ड पर्सन के साथ आता है। ये बात आप मैं रिपीट कर देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप एस और ई एस लगाएंगे सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ, और वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अभी आप ये एग्जांपल्स देख लें। मिस फाहद, आई डोंट नो द रीजन कि आपको वॉइस क्यों नहीं क्लियर हो रही। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। So just sign out again and sign in. I hope everybody else is able to listen to my voice. अच्छा जी, I and we जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, you जो है आपका सेकंड पर्सन है, he, she, it जो है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और they जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स यहाँ पे राइट कर दी हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। I go, I walk। सो आप फर्स्ट पर्सन यूज फर्स्ट के साथ आप यूज कर रहे हैं आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with first person I, with first person we, that is plural, with second person you, singular you and plural you, with third person singular he, third person singular she, third person singular it। जब आप वर्ब यूज करेंगे आप उसके साथ एस और ई एस ऐड करेंगे। अब एस का क्या मतलब है? वॉक, वॉक के साथ आपने सिर्फ एस ऐड करना है। गो, गो आपका यहाँ पे स्पेलिंग है एक्चुअली, राइट? आपका जो स्पेलिंग है वर्ब का वो सिर्फ गो है, लेकिन जब आप इसको थर्ड पर्सन ही, शी और इट के साथ ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा गोज। ही गोज, ही वॉक्स, शी गोज, शी वॉक्स, इट गोज, इट वॉक्स। जो इट प्रोनाउन है मैं अभी आपको उसका भी यूज बता दूंगी। यहाँ पे मैंने कैट लिखा है, इसका एक मकसद है कि इट जो प्रोनाउन है ये सब प्रोनाउंस है। आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, ये सब प्रोनाउंस है। सो आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस ऐड करना है। दे गो और दे वॉक टू द मार्केट, राइट? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेट्स हैव सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, I drink water, we drink water, you drink water, they drink water। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका देख लें। ही, शी, इट जो है
दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। मेरा यहाँ पे रिपीट करने का पर्पस ये है ताकि आपके माइंड में ये स्टिक हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि हम ये क्या कर रहे हैं। आई, वी, यू एंड दे के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, और सिंगुलर थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ आपने वर्ब के साथ एस राइट कर दिया। अब ये वर्ब पे डिपेंड करता है उसके स्पेलिंग्स पे कि आपने किसके साथ एस ऐड करना है और किसके साथ ई एस ऐड करना है। ये आपका प्रैक्टिस से आएगा। द मोर यू आर गोइंग टू यूज इंग्लिश, the more you are going to search the verbs, the more you are going to make sentences, the more you are going to listen to English, the more you are going to read English, आपकी English improve हो जाएगी। इन tenses को एक बात और आपके माइंड में रखनी है, अगर मैं आपको यहाँ पे ग्रामर स्टडी करवा रही हूँ, मैं ग्रामर के रूल्स आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ग्रामर का रट्टा लगाना शुरू कर देना है, ठीक है? प्लीज डोंट डू दिस। रट्टालाइजेशन इज नेगेटिव। हम रट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रैम। दिस इज कॉल्ड क्रैम, CRAM। You will not cram the tenses. You will not the tenses. This is wrong. इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे टेंसेस का के रूल्स बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं। व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर। आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, आपको पता होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट the secret to improving your English language is that you have to write as much as you can, you have to read as much as you can listen to English, and you will speak English. This is the magic to improving your language. ये structures का होना पता होना जरूरी है, but you are not going to cram them. Simple past tense. Simple past tense में कौन सा form of verb आता है? Second. सिंपल पास्ट टेंस की एक बात बहुत अच्छी है, उसकी एक बात बहुत अच्छी ये है कि जब आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल यूज करते हैं तो सबके साथ आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, विच मीन्स कि इस वर्ब फॉर्म के साथ कोई चेंज नहीं आएगी। आई गो, ओ सॉरी, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही, शी, इट वेंट एंड दे वेंट। सो गुड। Which means कि आपने जब सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है उसमें सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सारे पर्सन्स के साथ यूज करना है। आपकी जो आज मेमोरेबल ट्रिप की असाइनमेंट थी उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को मिक्स किया हुआ था, या फिर अगर पास्ट टेंस यूज करने की कोशिश की थी तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को मिक्स किया हुआ था। अभी मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी बता दूंगी कि उनका डिफरेंस क्या होता है, उसके डिटेल्ड सेशंस हैं, आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देनी है इंशाल्लाह ताला विद एग्जांपल्स एंड विद प्रैक्टिस। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, एक मेमोरेबल ट्रिप है, विच मीन्स आप एक यादगार ट्रिप के बारे में बात करें, सो यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। So in simple present tense, you have to use second form of verb, simple past tense, right? So ये आपके structures हैं, आप इन examples को देख सकते हैं बाद में। Simple past tense में आपके कुछ verbs ऐसे हैं जिनके साथ आप, क्योंकि ये second form of verb होगी, मैंने आपको verbs की list जब share करनी है तो आप कुछ verbs ऐसे देखेंगे जिसमें डी या ईडी लगता है सिंपल पास्ट टेंस बनाने में। एक सिचुएशन तो ये है कि आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी है? फॉर एग्जांपल वर्ब है गो, ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब फॉर्म में यहाँ पे राइट कर रही हूँ, गो इज फर्स्ट वर्ब फॉर्म, राइट? गो का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? वेंट। दिस इज योर second verb form, right? आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? गो का, गो, वेंट, गॉन, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा जी, अब इसमें से आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पिक कर ली, दैट इज वेंट, और आपने उसको सेंटेंस में यूज कर लिया क्योंकि आपने सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ?
कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, वॉक, उसको जब आप सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉक्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वॉक इज योर फर्स्ट form of verb, walked is your second form of verb, and walked again is your third form of verb. So क्योंकि हमने सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पिक करनी है, तो हम यहाँ से ये उठा लेंगे, वी विल पिक इट एंड वी विल यूज इट इन द सेंटेंसेस, एंड इसमें ई डी एंड पे ऐड हुआ है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके एंड पे डी ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे माइंड में आ नहीं रही, लेकिन जब मैं आपको लिस्ट सेंड करूंगी उसमें आपको आइडिया हो जाएगा और हम फर्दर ये डिस्कस करते रहेंगे, राइट। Second form of verb in simple past tense with all the persons. Simple future tense. Simple future tense, जब आपके माइंड में फ्यूचर आएगा, आपके माइंड में फौरन विल आ जाना चाहिए। जितने भी फ्यूचर टेंसेस हम करेंगे उसमें विल हमेशा आएगा, आगे उसके साथ वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज होगी, कहीं फर्स्ट होगी, कहीं सेकंड होगी, कहीं थर्ड होगी, हम देख लेंगे। आई थिंक विल के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वो हम देख लेंगे, लेकिन विल जो है वो हमेशा आपके फ्यूचर टेंस में आता है। अब हमने दोबारा पर्सन यहाँ पे लिख लिए हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट सिंगुलर, एंड थर्ड पर्सन दे प्लूरल। अब आप इसमें देखें, एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें भी आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ will plus first form of verb use करना। That's it. No change in the simple future tense. Is it clear to all of you? I will eat, we will eat, you will eat, he, she, it will eat, and they will eat. आज मैंने आपको all three tenses करवा दिए हैं, लेकिन trust me, you don't have to बर्डनाइज योरसेल्फ कि आज इन्होंने हमें इतना करवा दिया, हम इसको कवर कैसे करेंगे। इसमें कवर करने की कोई बात नहीं है। आपने इन टेंसेस को अपने सामने तब लेके आना है जब आप कोई असाइनमेंट राइट कर रहे हैं या आपने इंग्लिश यूज करनी है, यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड यू वांट टू यूज अ स्पेसिफिक टेंस, सो यू कैन जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, revise it a little bit with communicating to yourself, talk to yourself इस टेंस के बारे में। अच्छा जी, सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर है, उसमें विल आएगा, विल के साथ हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, अब हमने सब पर्सन्स के साथ क्या यूज करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में, सोचें, आई, यू, ही, शी, इट, विल, इट, दे। अच्छा जी, सबके साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है। इसको आपने क्रैम नहीं करना। अगर आप क्रैम करके रूल को अपने ब्रेन में घुसा लेंगे, then you will not be able to read, then you will not be able to write and speak. Speak confidently, just think के एक दो बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसको यूज करना शुरू करें। प्रोनाउन आपका है इट, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताना है। जो इट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। ये एक प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, और it is used for animals, it is used for plants and it is used for non-living things. आप it को humans के लिए यूज नहीं करते, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में cat लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, it is sleeping in the cot, it is my cot, it is my cat, it is a wooden table, so it जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज है। it is a beautiful flower, so plants के लिए it यूज होता है। इसको आप ह्यूमंस के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस के लिए आप it को नहीं यूज करते। So what we've done today, we have looked at the past, present and future simple indefinite tense. Indefinite tense का मतलब होता है जब आपको टाइम मेंशन नहीं हुआ होता, एक्शन कब हुआ है हमें नहीं पता। I went to the market. He sleeps at 8 p.m. at night. I will go to the school.
ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस की, और इसमें कहीं पे मैंने टाइम यूज नहीं किया, इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कि एक्शन कब हुआ ये हमें नहीं पता। ये मैंने जरूर कहा है, ही विल गो टू स्लीप एट 8 PM, ये अब यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया, बट हम ये भी कह सकते हैं ही विल गो टू स्लीप एट नाइट। सो इट शोज दैट द टाइम इज इनडेफिनिट। आप यूज करें या ना यूज करें, बट बेसिकली इनडेफिनिट टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता। Yes, today or yesterday. You're right. Specific timings आ जाते हैं, कोई specific time mention कर रहे हैं, वो आ जाता है Miss Saima. Otherwise, it is yes, you're right. Today and tomorrow or yesterday. This is what I mean. Tense का मतलब अभी मैंने आपको बताया है. Yes, Mr. Fida, आपको assignment मिल जाएगी. Don't worry. Tense का मतलब बताया है मैंने आपको, time, past, present और future. हम जब, एक बात आपने याद रखनी है, जब आप एक सेंटेंस बनाएंगे, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जब आप सेंटेंस बनाते हैं, जब आप एक टेंस यूज करते हैं, तो उसमें टेंस किस पार्ट ऑफ स्पीच से पता चलता है? वर्ब से। आपका वर्ब हमेशा आपको बताता है कि टेंस जो है वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर। ये बच्चा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ही इज स्केयर्ड ऑफ टेंसेस। आर यू स्केयर्ड ऑफ टेंसेस एज वेल? यस और नो? Well, if you're scared of tenses, if you're afraid of tenses, this is a normal thing. एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डरते रहेंगे, क्योंकि जो फियर है वो एक हमारा नेचुरल फीलिंग है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू कंट्रोल योर फियर, you have to control your emotions, and you don't have to run away from English. Just try to get hold of it with practice. Okay, so just don't worry if he's, ये जो पीप करे ना यहाँ पे, ये या पीप करें इस टाइम पे, हाँ हम जरा verbs और tenses पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, but with time I assure you that you're going to learn it, you will improve. हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में, वो 9 मेन कैटेगरीज हैं, और वो जो है बेसिकली इन 9 कैटेगरीज में हम वर्ड्स को क्लासिफाई कर देते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली। आप नाउन, अगर उसमें कुछ वर्ड्स को आप नाउन कहते हैं, उनको आप नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका फंक्शन ऐसा है कि वो नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जो जो वर्ड्स हम स्टडी करते हैं इंग्लिश में, दैट फॉल्स इन दीज 9 कैटेगरीज, एंड वी आर गोइंग टू discuss those categories one by one throughout this session. This is your assignment. You have to use these common verbs in your, these are actually, मैं आपको vocabulary के कुछ बिल्कुल basic words देना शुरू करूंगी। आज मैंने ये 5 words आपको दिए हैं, ask, talk, drink, write and call, and they are very simple words. They are the words that we commonly use in our language. So what you have to do is that if you want to improve your language, you will start using these simple words in day-to-day routine. And this is your assignment. Let's increase the number of sentences over here. Make 4 sentences of each word given in the box above. ये आपकी assignment है। ये जो आपके वर्ड्स हैं यहाँ पे, आस्क, टॉक, ड्रिंक, राइट एंड कॉल, हर वर्ड का आपने 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, विच मीन्स कि आपके 20 सेंटेंसेस बनेंगे ऑल इन ऑल, राइट? Preferably you can use simple indefinite tense because we have discussed simple indefinite tense today, जिसमें आप past, present और future तीनों टेंसेस को यूज करके 4 सेंटेंसेस आस्क के बनाएंगे, 4 टॉक के, 4 ड्रिंक के, 4 राइट के एंड 4 कॉल के। ये बड़ा सिंपल असाइनमेंट है, लेकिन जब हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे फिर हमें पता चलेगा। एंड सेकेंडली, आई विल वेरी मच वेलकम यू कि आप लोग गूगल पे जरूर इन वर्ड से रिलेटेड सर्च करें, डिफरेंट सेंटेंसेस देखें, लेकिन प्लीज डोंट सेंड अ कॉपी पेस्ट असाइनमेंट। सर्च इज समथिंग जो कि हमारे मुल्क में होता नहीं है, हम सर्च तो बिल्कुल भी नहीं करते, हम किसी भी तरह की रिसर्च नहीं करते, हम कुछ स्टडी नहीं करते, हमें कोई शौक नहीं है ये करने का। सो यू जस्ट ट्राई टू सर्च अ लिटिल बिट मोर कि ये वर्ड जो हमने आज स्टडी किए इनके मीनिंग्स क्या हैं। हमको सब ये मीनिंग्स पता होंगे, लेकिन आप सर्च करके देखें
और अगर इससे रिलेटेड कुछ मीनिंग्स आपको मिलते हैं वो मीनिंग्स भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें सो दैट वी हैव एन आइडिया दैट यस यू स्टडीड एंड यू आर सर्चिंग ऑन इट एंड देन यू कैन सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। एक मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ कि आप असाइनमेंट फौरन सबमिट कर सकते हैं और आप कुछ टाइम भी ले सकते हैं बिकॉज दिस इज हाउ दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स कि आप लाइव सेशंस देखें। इफ़ यू डोंट हैव टाइम फॉर लाइव सेशंस आप अपनी रिकॉर्डिंग्स जो है वीडियोस की वो देख सकते हैं और अपनी टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। आई एम सिटिंग ओवर हियर टू चेक योर असाइनमेंट। Send all your assignments. You can do extra work as well related to your English language. वो extra work करके आप assignment submit करते रहें WhatsApp group में और मैं आपको चेक करके रिटर्न करती रहूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में आप मेरे साथ डिस्कस करें। कहीं पे आप स्टक हो रहे हैं, मेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मैं कोई वर्ड सही नहीं बोल रही, आपको कुछ मुश्किल हो रही है, प्लीज आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। और अगर आपको साउंड सिस्टम का कोई इशू हो रहा है प्लीज अपना साउंड सिस्टम चेक करके कनेक्ट करें क्योंकि मेजॉरिटी को आवाज आ रही है। जिसको नहीं आवाज आ रही काइंडली यू कैन यूज योर headphones or you can check your settings before you join. Simple indefinite tense एक बार repeat कर दें। You can follow the recording because the session is coming to an end now. The session is, I'm just left with 1 minute. So I have to bring an end to the session now. आप recording देखेंगे, उसमें अगर आपको कोई problem होगा आप मेरे साथ WhatsApp group में discuss कर सकते हैं। इस चीज को अपने mind में रखें कि जब आप English बोलेंगे, if you want to learn English, start reading English loudly. Why you have to read loud? क्योंकि जब आप loud read करते हैं आपको अपनी आवाज आती है and you get an understanding that you get to have an understanding about your pronunciation, pauses, low and high pitch, कहाँ पे आप pause करें, कैसा word आप किस तरह pronounce कर रहे हैं, vocabulary कौन सी use करें, आपको अपनी आवाज आती है, आप record करें अपनी आवाज को so that you have an idea that how much you need to improve. Record your voice, listen to your voice and compare it with the English native speakers. YouTube पे आपको बहुत content मिलता है, मैं आपको videos share करूंगी जिसमें आपको easily idea हो जाएगा, बहुत से tips मिलेंगे कि आपने English कैसे improve करनी है. Start talking to yourself in English. Watch English movies with subtitles, whether you are a beginner or you are an intermediate student or you are an advanced level English speaker. English movies subtitles में देखने में कोई बुराई नहीं है. Just watch it and start improving your listening and reading skills. Relax and keep a positive attitude so that you can positively learn English. Kindly recorded session को देख लें indefinite tense को revise करने के लिए क्योंकि अब time जो है session का end हो गया है. Mr. Ahmed, I hope you understand. You can listen to the recording and you can ask me questions if you have any. Thank you so much and it was a great pleasure having you on the live session. Inshallah my live sessions 30 days के हैं. I'm sure that you are going to learn a lot. अपने confusions, अपने questions WhatsApp group में भेजते रहें ताकि मैं आपको answers दे सकूं. All of you are welcome. All of you are important and I respect all of you. आपके जितने questions और assignments हैं वो इंशाल्लाह आपको answer मिलता रहेगा. Take very good care of yourself and join hands like these humans over here on the face of this earth. Join hands and be interactive in the WhatsApp group in order to make English more interactive, in order to be more communicative. Take care of yourself and Allah.